So let's giving you brief introduction of about ourselves and me and this about this webinar. तो बेस्ड ऑन हमारे एक्सपीरियंस, हमारे मार्केटिंग पर्सनल एक्सपीरियंस और हमारे सर्टिफिकेशन और ऑपरेशन डिपार्टमेंट्स के एक्सपीरियंस के बेस पर कुछ चीज़ें हमें लगा कि इंडस्ट्री को एक गुड नोट पर कम्युनिकेट किया जाए। ये हमारा एक्सपीरियंस हमारा और हमारे से एसोसिएटेड सर्टिफिकेशन बॉडीज और ऑडिटर्स का भी एक तरीके से कंसर्न रहा है आज तक, जो हमने अभी तक क्लाइंट सर्व किए हैं इंडस्ट्री में। तो जो इसके जब इंडिविजुअल बातचीत मैन्युफैक्चरर से की गई या फिर उनके रेगुलेटरी पर्सनल या जो पर्सन कम्युनिकेट कर रहे हैं उनके साथ हमें एक यही गैप लगा कि दे सीरियसली वांट्स टू नो व्हाट शुड बी कवर्ड इन अ स्कोप और व्हाट वी कॉल एज अ स्कोप, राइट। सो बिकॉज स्कोप के अलग अलग मायने हैं, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर एक स्टैंडर्ड की एप्लीकेबिलिटी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में है जिसके लिए आप सर्टिफिकेशन लेना चाह रहे हैं, तो उसमें कितने तरीके के स्कोप आ रहे हैं, उन स्कोप्स को आप किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं ताकि जो फर्दर रेगुलेटरी है, सर्टिफिकेशन बॉडीज है, वो आपके उस स्कोप को पढ़ के अंडरस्टूड कर जाए कि आपके क्या प्रोसेस और एक्टिविटीज की जा रही हैं, राइट। So let's welcome you all and very good morning to all. Myself Gautam Singh Rathod, and on behalf of QVC Certification Services Private Limited, I'm going to deliver you this webinar, understanding and determining the scope in a quality management system, a case analysis by us, right? So in future we are going to extend this webinar at least in a month based on your queries. So we are always open to answer your queries and all, right? Now moving to next, we have a certain training programs as well as pertaining to the QMS, risk management and another which are available online and offline mode as well as. So our next training on quality management system is scheduled in first week of February month. So I encourage you to please join that training as well as this will be a awareness training program for the quality management system of ISO 13485, in which we have an open session as well as to discuss the queries, individual questions and queries, whatever you have in the training session as well as. That will be a one-day training and a certification will be granted for that training too, right? So coming to our topic today. So just giving a short introduction of our QVC. As you all people know that we are a certification cum medical device testing laboratory. We approved or accredited by NABL and CDSCO registered licensed laboratory to conduct the medical device testing in the India. So we have a total 10 year of medical device testing experience and another testing experience too, that we are actively working with various industries like petroleum, ATEX, heavy metal industries, cable industries, like more than household appliance industries as well as. So I am taking lead of the medical device division here. So let's stick towards this point, and thus this webinar will focus the scope in respect to the QMS standards applicable to every, whether it is of 9001, 50001, any standard. So the scope, so this context will be same. However, my examples जो मैं examples आपको दूंगा वो रिलेटेबल टू ज्यादा मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री से ही होंगे, बट आइडिया जो है इस वेबिनार का स्कोप के लेके वो कवर ऑल द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड्स, राइट। नाउ सो from here we begins with our real topic like quality management system. So specifically अगर मैं बात करूं ISO 13485 जो कि स्टैंडर्ड जिसका टाइटल है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट्स फॉर रेगुलेटरी पर्पसेस, वो उसकी शुरुआत ही आपके क्लॉज 1 से होती है जिसका टाइटल होता है स्कोप, राइट। तो अब एक स्कोप जो होता है, ये क्लॉज जो होता है ये आउटलाइन करता है उन सिचुएशंस को जहां पर स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट्स एक ऑर्गेनाइजेशन पर अप्लाई होती हैं। In general, the full scope of the ISO 13485 applies to your QMS unless specific activities are not performed by your organization. This is well understood. ये पूरा
ये टॉपिक आपके लिए बिल्कुल ही क्लियर एंड क्रिस्प है कि अगर जो पहला पॉइंट है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन पर कंप्लीटली एप्लीकेबिलिटी को दर्शाता है, अनटिल अनलेस अगर आप कोई स्पेसिफिक एक्टिविटीज को आउटसोर्स कर रहे हैं या कर नहीं रहे हैं, या फिर वो एक्टिविटी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट ही नहीं करती है बाय द वर्च्यू ऑफ प्रोडक्ट टाइप। ओके, सो मेक श्योर कि एक किसी क्लॉज की एप्लीकेबिलिटी और नॉन एप्लीकेबिलिटी को डिसाइड करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जो कि बाय द नेचर और बाय द वर्च्यू ऑफ प्रोडक्ट डिसाइड किया जाता है, बाय द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होता है, बाय द टर्म्स ऑफ हाउ यू आर मैनेजिंग दैट एक्टिविटी इफ यू आर नॉट डूइंग, वी कैन से आउटसोर्सिंग, राइट। तो कुछ पॉइंट्स मैंने आइडेंटिफाई किए थे जो कि स्टैंडर्ड्स को डायरेक्टली रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, लाइक the scope of application directly affects the definition of authorities and responsibilities relevant to the quality management system. So that ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है कि जब आप स्कोप ऑफ द एप्लीकेशन डिफाइन करते हैं अपने क्यूएमएस में, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में टेक पार्ट करने वाले ईच एंड एवरी एंटिटी की डेफिनेशन और अथॉरिटीज और डेफिनेशंस ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बदल के रख सकता है या फिर वहीं पे स्टैब्लिश भी करता है, राइट। लाइक एंड आपकी ऑर्गेनाइजेशन the organization shall provide the reason of the no applicability and justification for the non inclusion. अगर आप किसी भी क्लॉज को इंक्लूड नहीं करना चाह रहे हैं या उसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं बन रही है, देन एक सूटेबल जस्टिफिकेशन आपको देना पड़ता है, राइट। ये सूटेबल जस्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि जो ISO 13485 है वो एक रेगुलेटरी स्टैंडर्ड है। अनलेस 9001 अदर स्टैंडर्ड जो होते हैं वो भी समहाउ रेगुलेटरी बॉडीज या रेगुलेटरी अथॉरिटीज की रिक्वायरमेंट्स को मानते हैं, बट जो ISO 13485 है ये रेगुलेटेड सेक्टर का स्टैंडर्ड है, दैट्स व्हाई इसको रेगुलेटरी स्टैंडर्ड बोला जाता है। क्यों? क्योंकि आप इसकी रिक्वायरमेंट्स को डिनाई नहीं कर सकते अनटिल अनलेस हम 9001 में कोई जस्टिफिकेशन देते हैं जो कि सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैं देखिए, जब आप कोई भी अदर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को एस्टेब्लिश करते हैं उसमें एक रिक्वायरमेंट होती है कि आइडेंटिफाई द interested parties of your organization, and that interested parties can be your customer always, which you always choose। एक ऑर्गेनाइजेशन हमेशा चूज करती है कि उसका इंटरेस्टेड पार्टी जो है कस्टमर है ही, लेकिन जब हम इसको ब्रॉड वे में देखेंगे तो आपके इंटरेस्टेड पार्टीज, आपके कस्टमर, आपका सप्लायर, रेगुलेटरी बॉडी, लोकल रेगुलेटरी बॉडी, लोकल अथॉरिटी, ये आपकी सारी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं। इंटरेस्टेड पार्टीज हम क्यों कह रहे हैं? क्यों? उनका क्या इंटरेस्ट है आपके बिजनेस में? तो आपके कस्टमर का आपसे बिजनेस करना है, आपके सप्लायर का भी आपसे बिजनेस करना है, आपका उससे परचेजिंग करनी है। रेगुलेटरी बॉडी से क्या है इंटरेस्ट? कि आप उनके एस्टेब्लिश्ड गाइडलाइंस को फॉलो करें, ये होता है। बट जब आप ISO 13485 में आएंगे तो यहां पर आपसे नहीं पूछा जाता कि डिफाइन योर इंटरेस्टेड पार्टीज, बिकॉज जब ये रेगुलेटरी पर्पस के लिए डिफाइन किया गया है एंड इसमें एक क्लॉज होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स, वहां पर आपको आइडेंटिफाई करना होता है रिलेवेंट अप्रूवल्स, लाइसेंसेस लेने होते हैं रिलेवेंट टू योर ऑर्गेनाइजेशन टू रन, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, जिसमें आपका रेगुलेटरी बॉडीज का इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली, क्योंकि ये बिजनेस या सेक्टर जो है रेगुलेटेड है। विदाउट प्री अप्रूवल्स यू कैन नॉट सेल योर प्रोडक्ट्स, बट इन अदर इंडस्ट्री यू कैन सेल, यू हैव एन ऑप्शन टू सेल, राइट, दैट्स व्हाई। सो अब जब आप कोई रिक्वायरमेंट्स को एक्सक्लूड करेंगे तो उसके लिए दो कंडीशंस हैं। द रिक्वायरमेंट सपोर्ट करेक्टिव एक्शन प्रोसेस एंड आर नेसेसरी फॉर मीटिंग द मेडिकल डिवाइस रिक्वायरमेंट्स। अब यहाँ पर मैंने स्पेसिफिकली मेडिकल डिवाइस पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट्स को समझा रहा हूँ कि अब आप उस किसी भी क्लॉज को तब एक्सक्लूड करेंगे जब आप उसके लिए सपोर्टिव करेक्टिव एक्शन प्रोसेस और उनको इस वे में डिफाइन करेंगे कि वो मेडिकल डिवाइस की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल आप स्टिल करेंगे। अगर आप उस क्लॉज को एक्सक्लूड करते हैं तो अल्टरनेटिव मेथड्स आप क्या फॉलो कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट, द रिक्वायरमेंट सपोर्ट एंड आर नेसेसरी फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ करेक्टिव एक्शन प्रोसेस, और अगर आपके पास जो अल्टरनेटिव मेथड है वो उसको सपोर्ट करना चाहिए और वो नेसेसरी भी है आपकी डिवाइस टाइप के लिए या प्रोडक्ट टाइप के लिए। देन लास्ट, in case of outsourced processes, the outsourced processes will be identified and included in the quality manual. These processes will be appropriately controlled by the and the manufacturer shall acquire the minimum knowledge of that process what he is going to outsource, and the technical abilities to control over these processes, right? Why required? Because you cannot directly outsource whole production
it's an ideally it is not considered as a good practice, but if still you are outsourcing your whole process, then आपकी सर्टिफिकेशन या नोटिफाइड बॉडी इंटरेस्टेड होगी उस साइट को ऑडिट करने के लिए, और ये प्रोविजन है। क्योंकि अभी लेटेस्ट IFMD9 का जो डॉक्यूमेंट्स, एक गाइडेंस डॉक्यूमेंट पब्लिश हुआ था, जो मैंने चैनल में भी शेयर किया था आप लोगों के साथ, जिसमें किन कंडीशंस में ऑडिट के एक्सक्लूजन्स और डिपार्टमेंट के एक्सक्लूजन परमिसेबल हैं, कौन से प्रोसेसेस किसी भी कंडीशंस में अंडर एनी सर्कमस्टांसेस नॉट परमिसेबल है। उसकी एक प्रॉपर टेबल भी है, वो मैंने आपका वेबसाइट पर भी पब्लिश की हुई है, चैनल में रेगुलरली अपडेट दिया हुआ है। आई विल शेयर दैट आफ्टर दिस वेबिनार, हम उसके लिंक्स भी आपको चैनल में डाल देंगे, राइट। अब जब हम कोई भी स्टैंडर्ड, किसी भी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का स्टैंडर्ड या फिर एक कोई भी हॉरिजॉन्टल स्टैंडर्ड्स को जब हम स्टडी करते हैं, तो वेदर डेवलप्ड बाय ISO, स्पेसिफिकली ISO, तो उसमें एक टर्म आती है, एक फ्रेज आता है, एज अप्रोप्रिएट। जब भी वो टर्म आए एज अप्रोप्रिएट, इट इज डीम्ड टू बी अप्रोप्रिएट अनलेस द ऑर्गेनाइजेशन कैन जस्टिफाई अदरवाइज। इसमें हम डायरेक्टली ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर उस क्लॉज पे, किसी क्लॉज पे एज अप्रोप्रिएट आया है, इट मींस उसकी एप्लीकेबिलिटी बन रही है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। नोटिफाइड बॉडी आपको परमिट या अलाउ नहीं करती, या कोई भी बॉडी आपको अलाउ ये नहीं करेगी आप उसे एक्सक्लूड करें, बट एवरी केस हैज एन एक्सेप्शन, हर जगह आपको एक्सेप्शंस मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा कि अगर आपके पास एक सूटेबल जस्टिफिकेशन है जो आपकी सर्टिफिकेशन बॉडी, रेगुलेटरी बॉडी को जस्टिफाई कर सकता है, देन आप उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे क्लॉजेस बेयरली ही एक्सक्लूड होते हैं। अब मेरे एक्सपीरियंस में ये केस उस केस में आता है बाय वर्च्यू ऑफ द प्रोडक्ट। लाइक अगर मैं नया 13485 की एग्जांपल दूं, तो जो आपका एक स्टरलाइजेशन वाले क्लॉज होते हैं, एक्टिव इम्प्लांटेबल वाले क्लॉज होते हैं, ये वाले क्लॉज प्रोडक्ट टाइप पर ही एक्सक्लूड किया जा सकते हैं कि अगर आपके प्रोडक्ट की वो फीचर नहीं है तो, एल्स आप उसको अपनी मर्जी से किसी भी तरीके का जस्टिफिकेशन प्रोवाइड कराकर एक्सक्लूड नहीं कर सकते। यस, नाउ अब ये मैंने एक इलस्ट्रेशन, सिंपल सा इलस्ट्रेशन बनाया हुआ है कि सारे स्कोप्स को ऑल टुगेदर समझने के लिए और बाइफरकेट करने के लिए। तो हमारा स्कोप का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, मतलब कि किसी एक थर्ड पर्सन के नजरिए से अगर हम किसी को देखें, सर्टिफिकेशन बॉडी के नजरिए से हो, या फिर एक कोई ऐसा पर्सन है जो एक स्टैंडर्ड को पढ़ रहा है और उसे अगर हमें समझाना हो कि एक स्कोप को, राइट, तो इतने टाइप के स्कोप है और पर्सपेक्टिव है सबका। नोटिफाइड बॉडी का अपना पर्सपेक्टिव है स्कोप का, एक कंपनी को इम्प्लीमेंटेशन के दौरान अलग पर्सपेक्टिव है, एक स्टैंडर्ड को जब क्रिएट किया जाता है तब उस टाइम पर स्कोप बनाने वाले का अलग पर्सपेक्टिव है, और जब हम आपके स्कोप को ऑडिट करते हैं उस टाइम हमारा पर्सपेक्टिव अलग होता है, राइट। तो इन सारे पर्सपेक्टिव को हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं कि इन पर्सपेक्टिव्स पर हमारे क्या क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है स्कोप को लेके स्पेसिफिकली। तो फर्स्ट वन जो है स्कोप ऑफ ISO 13485। यहाँ पर हम जो मतलब मेजरली मेरा कहने का मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें आ सकती है और डेवलप करने वाला भी इसमें आ सकता है, जहां पर हमारे एप्लीकेबल क्लॉजेस ऑफ द स्टैंडर्ड्स को डिफाइन किया जाता है कि क्लॉज क्या है, उस क्लॉज की एप्लीकेबिलिटी क्या है, किन कंडीशंस में वो एप्लीकेबल हो रहा है, और उस क्लॉज की फर्दर सब रिक्वायरमेंट्स क्या, और सब क्लॉजेस का डेवलपमेंट। तो ये ओवरऑल स्टैंडर्ड का स्कोप भी कह लीजिए, और एक ऑर्गेनाइजेशन पर क्या एप्लीकेबिलिटी बनती है स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, ये वो है। देन स्कोप ऑफ द QMS। अब यहां से हमारी पूरी एक्टिविटी स्टार्ट होती है, यहां से हमारा इन्वॉल्वमेंट होता है कंपनी का, कंपनी के बिजनेस पॉलिसीज का, एक सर्टिफिकेशन बॉडी के इंटरेस्ट का। देन अब यहां पर आप देखेंगे हमने लिखा हुआ बिजनेस एक्टिविटीज कवर्ड बाय स्टैंडर्ड बट नॉट अंडर द सर्टिफिकेशन। इसका मेरा कहने का मतलब यह है कि एक कंपनी जो है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी एक्टिविटीज करती है, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स, कस्टमर की सर्विस, कस्टमर सैलरी, वर्क, रिप्लेसमेंट, बहुत सी एक्टिविटीज करती है। तो अब हमें यहाँ पर क्या होता है कि सारी एक्टिविटीज आपके सर्टिफिकेशन में नहीं आ सकती, राइट। आपके क्योंकि सर्टिफिकेशन आप क्यों लेते हैं, सर्टिफिकेशन आप लेते हैं कि आप अपनी एबिलिटी शो करने के लिए कि यस regarding that certain type of activity or product you can manage the quality consistently,
इट इज नॉट अबाउट द वन टाइम कि आप अब एक बार अपनी क्वालिटी को मैनेज करें और नोटिफाइड बॉडी या सर्टिफिकेशन बॉडी को शो करें कि यस हमने क्वालिटी मेंटेन की। इसका मतलब है कि कंसिस्टेंसी रखते हैं आप अपनी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। तो ये वहां आता, हम नेक्स्ट स्लाइड में इसके एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे। नाउ थर्ड वन, द स्कोप ऑफ सर्टिफिकेशन। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, बिजनेस एक्टिविटीज इनसाइड द क्यूएमएस एंड अंडर सर्टिफिकेशन। नाउ यहां पर मेरा कहने का मतलब है कि ये वो एक्टिविटीज हैं जो आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज है, क्यूएमएस का एंट्री पार्ट है क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये अंडर सर्टिफिकेशन भी जाएगा, लाइक आपकी मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन, डेवलपमेंट, सेल्स, सप्लाई, दिस और फर्दर medical device name or grouping, class, whatever. Then third, the scope of the audits. This defines that the activities and processes being audited, it is the directly proportional to the scope of certification. So, और until unless अगर ऑडिटर में चाहे ड्यूरिंग द ऑडिट अगर वो उसको लगता है या फिर सर्टिफिकेशन बॉडी को लगता है कि नहीं ये एक्टिविटीज भी आपकी क्वालिटी को इम्पैक्ट कर सकती है, तो उनका भी ऑडिट हो सकता है, या आपका ऑडिट प्लान में शेयर हो जाता है। नो जो फर्स्ट है कि इसमें मैंने आपको एग्जांपल के लिए, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में एग्जांपल डिस्कस करेंगे, फर्स्ट हम वन बाय वन एक एक को एक्सप्लेन कर लेते हैं कि दो पॉइंट्स हैं एप्लीकेबल क्लॉजेस ऑफ द स्टैंडर्ड, ऑल क्लॉजेस व्हिच आर डीम्ड एप्लीकेबल कंसीडरिंग द रेगुलेटरी एंड कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। अब यहाँ पर जब हमें एप्लीकेबिलिटी और नॉन एप्लीकेबिलिटी को डिसाइड करना होता है, स्पेसिफिकली 13485 के लिए रेगुलेटरी एंड कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखना होता है, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए अपनी एप्लीकेबिलिटी और नॉन एप्लीकेबिलिटी को डिफाइन करना है। अब टॉकिंग टू अदर स्टैंडर्ड्स 9001, 14001, 50001, 27001, इसमें हमें फर्स्ट आइडेंटिफाई करना होता है इंटरेस्टेड पार्टीज एंड एप्लीकेबिलिटी एंड नॉन एप्लीकेबिलिटी विल बी डिसाइडेड इन रेस्पेक्ट ऑफ दैट इंटरेस्टेड पार्टीज। ओके, तो ये मैं आपको रिलेट कर रहा हूं अदर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड्स के साथ। नाउ अब these applicabilities are based on the roles undertaken by the organization under the applicable rules and laws. Now 13485 का सबसे क्रिटिकल पॉइंट ये है कि ऑर्गेनाइजेशन को अपना रोल डिफाइन करना होता है कि वो इस पूरे सप्लाई चेन में किस पोजीशन पर बैठी है या क्या पोजीशन वो टेक करने जा रही है, whether he is going to be the manufacturer, supplier, dealer, wholesaler, retailer, what will be the role of the organization that will be directly reflected in the scope of certification of the organization, right? So this point is very important जब हम इन चीजों को एप्लीकेबिलिटी को डिफाइन करने चाह रहे हैं। तो now the business activities covered by the standard but not under the certification. So इससे मेरा कहने का पर्पस ये है कि स्पेसिफिकली अगर मैं आपको बात बताऊं अपनी, तो कि अब हम जब स्कोप डिसाइड करते हैं तो हम उसमें रिवर्क नहीं डालते, सर्विसिंग नहीं डालते, राइट? एंड सर्विसिंग एंड इंस्टॉलेशन अभी रेगुलेशन का पार्ट नहीं है, मींस कि ये कोई रेगुलेटेड एक्टिविटी नहीं है, बट इट्स अ पार्ट ऑफ क्यूएमएस, इट कैन बी कवर्ड अंडर द क्यूएमएस, राइट? सो आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं आप मुझे Q&A बॉक्स में रेज कर दीजिए। जब हम इस वेबिनार को कंक्लूड करेंगे या जब हम स्लाइड्स दे चुके होंगे तो आपके वन बाय वन क्वेश्चंस या फिर वन बाय वन हम आपसे इंटरेक्ट भी करेंगे Q&A सेशंस के लिए। सो जस्ट प्लीज वेट, आई कैन सी। सो अगर आपको बीच में कोई आवाज या नहीं आ रही है, कुछ डिस्प्ले प्रॉब्लम हो रही है, तो आप थम्स अप रेज कर सकते हैं। सो अवर आईटी टीम और टेक्निकल टीम कैन लुक इनटू इट, व्हाट इज द इशू। सो आफ्टर दैट वी विल रिज्यूम, राइट? तो देन अब बिजनेस एक्टिविटीज में एक कंपनी काफी बिजनेस एक्टिविटीज करती है, लाइक वो रिवर्क भी करती है, सर्विसिंग एंड इंस्टॉलेशन भी करती है, रिकॉल के प्रोसीजर भी होते हैं जो कि एक क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, मार्केटिंग एंड सेल्स भी करती है, आउटसोर्स एक्टिविटीज भी करती है। Why these business activities I am considering most important but not covered in a certification is that why I am focusing that, because जब आप अपना QMS डेवलप करेंगे तो आपको इनको भी कंट्रोल करना है, right? If you are managing your rework activities very nicely, then your product quality will be good, because these activities are indirectly affecting your product quality. So that's why these activities were covered by the standard but are not given you under the scope of the certification, right? But while auditing, these activities are also monitored, and in the audit it is addressed. You have a provision to that, but you cannot write in your scope that
rework of these medical devices. It's not currently given, right? So to advise, or you have to write your scope very precisely. Now, coming to the third one, the scope of certification. So in the scope of certification, as we have discussed earlier, that the roles, what roles you are going to undertake, like manufacturing, installation, purchasing, testing, products and technology. Like products and technology, why I'm written that what type of technology you are dealing, or manufacturing or sterilizing or testing. So these type of activities. So the scope of certification is very specific to the roles opted by the manufacturer, because this is directly proportional or relatable to the रेगुलेटरी लाइसेंसेस. सीडीएस को लाइसेंस जब आप लेते हैं तो उसमें लिखा होता है आपको मैन्युफैक्चरिंग सेल्स फॉर क्लास ए एंड बी डिवाइसेस, और एक एनेक्सर में प्रोडक्ट लिस्ट आपकी होती है. सो समव्हाट काइंड ऑफ दिस इज द स्कोप, राइट. अदर लाइसेंसेस भी होते हैं, लोन लाइसेंस टाइप, और आपका होलसेल लाइसेंस भी देता है सीडीएस को. तो आपके स्कोप भी उसी तरीके से होते हैं. स्कोप हम छोटा या प्रिसाइज स्कोप हम क्यों कहते हैं, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको उसके एग्जांपल, प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा. देन अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कि स्कोप कैसा होना चाहिए, एक आइडियल स्कोप को कैसा दिखना चाहिए, या एक स्कोप आइडियली होना कैसा चाहिए. तो देखिए मैंने 3 तरीके के स्कोप दिए हैं. मैं ये नहीं कहता कि ये स्कोप गलत है या कंप्लीटली एक्सेप्टेबल है हर एक सर्टिफिकेशन बॉडी पे, क्योंकि जब मैन्युफैक्चरर काफी जोर देता है तो सर्टिफिकेशन बॉडी कई बार एग्री भी हो जाती है और कई बार एग्री भी नहीं होती है. ये आपकी सर्टिफिकेशन या नोटिफाइड बॉडी के पॉलिसी के ऊपर होता है कि वो उनके अधेरेंस क्या है, वो ग्रांट किसमें करते हैं. बट हम यहाँ पर एक आइडियल सिचुएशंस को डिस्कस करने आए हैं कि एक स्पेसिफिक स्कोप कैसा होता है. डिजाइन, मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डायग्नोस्टिक इमेजिंग डिवाइसेस एंड एसेसरीज फॉर द हेल्थ केयर एप्लीकेशन. सो ये स्पेसिफिक स्कोप है, वेरी गुड स्कोप है, जो काफी सर्टिफिकेशन बॉडीज को एक्सेप्ट भी करती है और अच्छा भी लगता है, क्योंकि सारी एस्पेक्ट्स, स्टैंडर्ड के सारे एस्पेक्ट्स को कवर भी करता है. ये भी बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप के प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी में डील कर रही है, मेडिकल डिवाइस टेक्नोलॉजी हम जिसको कहते हैं. देन एक फोकस स्कोप होता है कि मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन एक टारगेटेड पॉइंट पे ही वर्क करती है, लाइक प्रोडक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ आईवीडी रिएजेंट्स फॉर क्लिनिकल लेबोरेटरीज. सो एक फोकस्ड स्कोप है, राइट. मतलब ये ओपन स्कोप नहीं है. कल मींस कि कल को आईवीडी एनालाइजर्स अगर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने लग जाए तो ये उसमें काम नहीं आएगा. बट जो आपका अबव स्कोप हमने जो डिसाइड किया, डिजाइन, मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डायग्नोस्टिक इमेजिंग डिवाइसेस एंड एसेसरीज फॉर हेल्थ केयर एप्लीकेशन. अब इसमें आपका देखिए सीटी स्कैन, एमआरआई और अल्ट्रासाउंड भी कवर हो जाएगा. अभी जब ऑर्गेनाइजेशन ने स्कोप चूज किया था उस टाइम ऑर्गेनाइजेशन के पास एक्सरे थे और सीटी स्कैन था, बट लेटर ऑन ऑर्गेनाइजेशन ने अल्ट्रासाउंड को भी यूज कर लिया, तो वो बढ़ा सकते हैं विदाउट चेंजिंग देयर स्कोप, राइट. फ्लैट पैलेट डिटेक्टर्स भी ऐड ऑन कर लिए. तो एक स्कोप का मतलब एक स्कोप को आपको इतने स्मार्टली डिजाइन करना है कि इन फ्यूचर देखिए एज एन ऑर्गेनाइजेशन टाइमली एक्सपेंड भी करती है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, ओके, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट नीड्स ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंड भी करती है. तो हर बार अगर आप अपने स्कोप रिवाइज करेंगे तो आपको एक ऑडिट और बाकी कॉस्ट एक्सपेंस भी आते हैं ऑफ कोर्स. तो आप एक डिग्री ऑफ चेंज का प्रीव्यू रखिए कि अपने स्कोप में जब आप, ताकि ये ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है कि जब आप कोई माइनर सा चेंज करेंगे तो, क्योंकि देखिए सर्टिफिकेशन बॉडी एज ए नोटिफाइड बॉडी वी हैव टू चार्ज, बिकॉज हमें आपका री रिकॉर्ड करना होता है, रीशेड्यूल करना होता है, एक फॉर्मल ऑडिट करके उनके रिकॉर्ड सबमिट करने होता है कि यस आफ्टर दिस चेंज ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल क्वालिटी या प्रेजेंस में कोई मेजर चेंज नहीं है. देन ये आपका एक थर्ड प्रिसाइज स्कोप, मैन्युफैक्चर एंड पैकेजिंग ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन. सो अब देखिए ये वाला स्कोप जो है बिल्कुल ही ऑर्थोपेडिक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर ही लिमिटेड है, राइट. तो इस टाइप के आपको स्कोप्स डेवलप करने होते हैं. देखिए ये एक स्किल है, ये एक आर्ट है. देखिए सामने वाले रेगुलेटरी प्रोफेशनल जो कंपनी है जो अपना स्कोप डिफाइन कर रही है उसकी स्किल है टोटली. जरूरी नहीं है कि सब लोग सेम टाइप ऑफ स्किल या सेम टाइप ऑफ माइंडसेट शेयर करें. दैट्स व्हाई अब ये आइडिया कोई हमसे भी बेटर एक्सप्लेन कर सकता है, कोई मुझसे भी बेटर स्कोप को डिफाइन कर सकता है. तो ये हमें जरूरी नहीं है कि कितना, हाँ हम लोग अपने आइडियाज को शेयर करके इन चीजों पे वर्क कर सकते हैं. तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर आपको एग्जांपल्स को शेयर कर रहा हूँ ताकि आपका ऑर्गेनाइजेशन के कॉस्ट बेनिफिट हो सके और आप इन चीजों को लर्न कर सके और कोई इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर सके, राइट. तो और एक रिमेंबर करिए, हमने काफी चीजें एक नोटिस की है कि
आपका जो QMS का स्कोप है, इट इज जस्ट फॉर रिफ्लेक्टिंग योर ओवरऑल क्वालिटी, हाउ यू आर मैनेजिंग, नॉट अ प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन। लाइक मोस्टली हमने जब स्कोप में देखा है कि लोग अपने प्रोडक्ट के इंडिविजुअल नाम डाल देते हैं, जबकि वो प्रोडक्ट क्लब होकर डाले जा सकते हैं। लाइक अगर मैं स्पेसिफिक स्कोप वाला जो हमारा है, जिसमें डायग्नोस्टिक इमेजिंग डिवाइसेस है, ये ठीक है, इमेजिंग डिवाइसेस को कवर करता है, बट अगर मैं यहाँ पे डाल दूं कि CT स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, देन ये स्कोप आपका प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन ज्यादा लगेगा, ना कि क्वालिटी मैनुअल सिस्टम स्कोप लगेगा। ओके, तो अब कई बार क्या होता है कि सर्टिफिकेशन बॉडी या नोटिफाइड बॉडीज भी आपको एम्फेसाइज करते हैं कि नहीं, आप प्रोडक्ट डालिए, अपने सारे प्रोडक्ट के नाम डालिए, देन वो सर्टिफिकेशन बॉडी के एक्सेप्टेंस पॉलिसीज पर होता है, बट ओवरऑल जो प्रैक्टिस चलती है उसमें हमारा QMS का सर्टिफिकेशन तो जस्ट फोकस्ड ऑन योर quality management system, not on your product system. Okay, you have to address the things, medical technology in your scope, right? Because QMS आपका स्पेसिफिक टू योर प्रोडक्ट सर्विसेज के लिए नहीं होता, आपको प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन एडिशनली लेना होता है। अगर आप अपने QMS में ही प्रोडक्ट का नाम डाल के उसको सर्टिफाई करा लेते हैं, तो वो मोर लुकिंग लाइक। ये सारी चीजें आपके टेंडर्स में कई बार प्रॉब्लम देती हैं जब आप न्यू प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करते हैं, या फिर कई बार ये रिजेक्शन का भी कारण बनती हैं जब आप इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करते हैं अपना सर्टिफिकेशंस। तो ओवरऑल एक एक्सपीरियंस्ड प्रोक्योरमेंट एजेंसी जो होती है वो छोटी छोटी चीजों को हाईलाइट कर देती है, राइट। देन अगर एक मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरर है, देन उसका आइडियल स्कोप क्या होना चाहिए? डिजाइन एंड असेंबली ऑफ डायग्नोस्टिक इमेजिंग डिवाइसेस एंड रिलेटेड एसेसरीज फॉर हेल्थ केयर एप्लीकेशंस। ये एक मेडिकल डिवाइस अगर कोई मैन्युफैक्चरर है तो उस पर अब अगर वो डिजाइन नहीं करता है तो वो मैन्युफैक्चरर असेंबली लिख सकता है। तो मोस्टली जो एक्टिविटीज कर रहा है वो अपनी एक्टिविटीज को डाले, मेरा ये कहने का मतलब है। सेम सिमिलरली IVD डिस्ट्रीब्यूटर के लिए एक मेरे पास एग्जांपल है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेयरहाउसिंग ऑफ क्लिनिकल लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक किट्स एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरर के लिए अगर हम देखें तो मैन्युफैक्चर एंड स्टरलाइजेशन ऑफ क्लास 2 ऑर्थोपेडिक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल इसको प्रिसाइज कर दिया क्लास 2 ऑर्थोपेडिक। अगर वो क्लास 2 ना भी लिखे तो भी चलेगा, ऑर्थोपेडिक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑर्थोपेडिक इम्प्लांटेबल डिवाइसेस भी लिख सकते हैं। तो ये एक्टिविटीज इस तरीके से हमारा स्कोप क्राफ्ट होना चाहिए ना। ओके, तो इसके साथ हम एंड करते हैं। दैट्स ऑल अबाउट दिस। सो अब आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, आई एम बाउंड टू रिस्पॉन्ड यू। तो प्लीज आप मुझे क्वेश्चन पूछिए। मैं कई लोगों ने हैंड रेज भी किया हुआ है, so let's okay, yes Mr. Syed, I have allowed to speak you, please आपकी कोई queries हैं तो please पूछिए। हेलो हेलो Mr. Somani ji, good morning to you. Please you have a question, please ask. हेलो हेलो प्रत्येश सर, आप बोल सकते हैं आपकी क्वेरी सर प्लीज। ओके, तो जिन पीपल ने हैंड रेज किया हुआ है मैंने सबको अलाउ किया हुआ है। प्लीज आपके क्वेश्चन है तो 1 by 1 प्लीज आस्क। हेलो Hello. Yes ma'am, please. Yeah. Good morning, sir. This is Revati. So we are from a certification body. We received a scope from a client with respect to calibration and testing. So client scope is very big, like providing calibration services for general active non-implantable medical devices, and he has given a lot of examples. Okay. And with respect to another point is providing services for preventive and breakdown maintenance of biomedical equipment for healthcare industries. That is for non-active and non-implantable medical devices such as patient monitor and ECG machine. So, can you advise how we can consider this scope? Okay, please. Okay, yes ma'am. So, as per the regulatory body's requirement, these services are not regulated, right? But Yeah.
as per the ISO 13485, under the definition of scope, I will guess third paragraph of the first clause, you see that the service providers involved in the industry, they can also opt ISO 13485, right? Yes. So your questionnaire, there will be a section, must be there a section where a column defines that the service provider, for service providers, what services they are offering. Okay. Yes. So in that case, the main activities you can give to them scope. Like if he is providing the calibration services to the industry, like you should give them scope that the services like calibration services to the medical device industry. Okay, specific. Can you explain that scope he has asked? So he's mentioning like with respect to the infusion devices, respiratory devices, devices for stimulation, multi-patient monitors, electrical safety testing for the active non-implantable medical devices. So he has mentioned so many things like this. Okay. So we cannot stick them with him the device name mentioning, but for services industries, you should follow the what other or for what other standards you are giving the scope, right? Yeah, so we are a bit confused how we can give a Like specific. you can give him the scope, provide calibration services to the medical industry. Just limiting the scope. You cannot give him the Okay, so specific. in that case, if we mention calibration services for medical devices, it's a broad category, right? So all the He can give all. He can provide calibration services to all of them. So it's covering a broad category, all types of medical devices. Yes, ma'am. If he is calibrator of a particular medical device performance related characteristics like the parameters of patient monitor, parameters of ECG, like that, it will not come under the calibration. It will come under the servicing and installation of the medical device. Achha. Okay. Yeah, because other calibration, what we mean is that by measuring the measurable parameters like the with legal metrology regulates. You can, like, the units of measurement. These activities we consider at a calibration. But if he is calibrating or troubleshooting a medical device performance, like his performance parameters, BP and other is calibrating, right? So it won't come under calibration, it will come under the servicing and installation activity. Okay. Okay. Here you can provide him scope the servicing and installation of medical devices can be. But he is not claiming servicing and installation, only he's claiming calibration and testing services for medical devices, and he has given some examples. Ma'am, actually, if NABL have a scope to grant the calibration certificate for this, but against the standard, but those standards are product performance standards, not a calibration standards. Actually, they are accredited by NABL as well for calibration and testing. In their scope, they will be granted their performance standards, products performance standards, not the calibration standards. Okay. Yes. So this activity is coming under the servicing of the medical device. So I'm just going to service of the medical device or troubleshoot the medical device. Okay. Okay. And for these purposes, they have specialized instruments, the fluke meters and all, not the single master calibrated devices. Okay. Okay. So we have another query, sir. Like if we receive a client request and their products are not regulated yet. Okay. So how we can proceed ahead for scope determination? This question is relevant to medical device industry or any other industry? Yeah, medical device industry. It's like orthopedic manufacturers, orthopedic instrument. Ma'am, medical devices in India now regulated under the statutory executive order 645. Okay, so any medical device, any device which falls under the definition of medical device will be regulated. Okay. Okay. So all activities of medical device, including IVDs, are regulated in India now since 2022. Okay. Okay, sir. Yeah. Thank you. Okay.
Yes, please. Any other person having question, you may ask. Hello. I have allowed all people to speak who have raised their hand. If not, then I will move to the Q&A section. Okay, so we have a question in chat box that is it mandatory to obtain an ISO 134 certification from a certifying body if the product is intended for sale exclusive in India only? Or would a duly signed declaration stating compliance with the fifth schedule to the MDR 2017 is sufficient? Okay, so obtaining the ISO 13485 is mandatory now if it is exclusively sale in India, right? So signed declaration stating compliance with the fifth schedule doesn't mean you are complying, right? So government has mandated the requirement of the ISO 13485 from the NABCB accredited certificate. So your certificate should be from NABCB. ये केस में होना चाहिए. अगर आप स्टिल अगर आप 13485 नहीं ऑब्टेन करते हैं देन आप पर ऑडिट प्रोविजंस सारे लागू होंगे. एक्स्ट्रा मैंडेट और अलग से प्रोविजन है जो कि गाइडेंस डॉक्यूमेंट में रिलीज किया गया था सीडीएसको के. आपके पास ISO 13485 होने का मतलब है कि आपको एक सर्टेन लिमिट ऑफ एग्जेम्पशंस ग्रांट हो जाते हैं ड्यूरिंग द ऑडिट एंड इंस्पेक्शन. ओके, so now we have a question by Mr. Yash. Can a medical device distributor obtain ISO 13485? Yes, a medical device distributor can obtain the certification of 13485 under the wholesale category, wholesale and retail category. So another question I have from Mr. Satvinder ji. It is compulsory to scope becomes look like for QMS. Like I'm not getting what points you are discussing. The whole idea to deliver this presentation is that to get an clarification what is the scope with respect to the certification body as a manufacturer or a notified body. So मुझे सबका पर्सपेक्टिव आपको समझाना था. बाकी रेस्ट स्कोप आप ही को डिफाइन करना है. मेक श्योर कि आप अपना स्कोप स्मार्टली डिफाइन करें कि वो फर्दर जब कंपनी बिजनेस एक्सपेंड करे तो आप उन फाइनेंशियल्स या फिर अदर जो चीजें हैं उनको एड्रेस कर पाए प्रॉपरली. ओके, यस सुजीत जी, मैंने आपको अलाउ किया था. मैं अभी प्रत्येक सर को भी अलाउ कर रहा हूं. और ये इसकी वीडियो आपको रिकॉर्ड होगी, हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगी आपको. तो सुजीत जी, हमने अलाउ किया हुआ है आपको बोलने के लिए. यू कैन प्लीज आस्क योर क्वेरीज. यू आर अलाउड टू स्पीक प्लीज. हेलो हेलो. ओके सुजीत जी, आप प्लीज बोल सकते हैं. स्टिल कोई इशू आ रहा है टेक्निकल तो यू मे रीच आउट टू मी ऑन व्हाट्सएप. आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू ऑल. अगर और भी किसी के पास कोई क्वेरीज है, क्वेश्चंस हैं तो प्लीज यू मे आस्क. आई विल बी आंसरिंग यू ऑल योर क्वेरीज, राइट. Okay, thank you all for joining this webinar. Next webinar we are planning to conduct about the standards and all, so we'll help you out in that also. Okay, so still if you have any questions you may ask, and all people who have raised the hand I have allowed them to speak. Still not in next 2 minutes I will be concluding this webinar. Thank you all for the joining this webinar and thank you for your support. In the last webinar we have received. In future we will be doing lot of webinar on your practical challenges. So make sure you will you join our training programs, as well as for any queries, doubts and clarification you may reach out to me. I will be happy to answer all your queries. Thank you all. Thanks. Okay, so I have just received an query, 2 questions by Mr. Sujit. IS 23485 mandatory for India. There is no any gazette notification came yet
to confirming that IS 23485 is mandatory. But if you want to really implement a good quality system, I must recommend that follow that standard as well as just to further understand the requirements, because that standard having all the requirements for the medical device industry, okay, relevant to the device specific requirements as well as. So it will be greatly help you for the implementation of a good QMS. Okay, now by Mr. Shivam, we have a question. If the company scope is manufacturing of sheet metal components, is this scope fine, as we cannot mention each part we are developing? Yes, this is fine, subject to the acceptance of the certification body, right? So like sheet metal components, like you are manufacturing what type of components, the type you have to define. Like if you are manufacturing like bolts, screws, small components, right? Okay, so this type of things we have you can develop, but make sure if you are manufacturing a lot of type of things, you can consider them a group of parts or components. Like if certain components called as screws and nuts, so sheet metal components bracket, in the bracket you can write as screws, nuts, bolts, and another whatever type of components you are making, like way. Okay. If anyone having more questions, you can ask in the Q&A session. I am available for next 10 to 15 minutes as well as, right? In which EA code we describe a fabric. So like I'm not aware about that EA code. Okay, you can mail me. I will forward this query to our technical departments, so there will be better answer for you. So we have certain different divisions for the certification and auditing. So all people take care of their each department relevant to the industry. I'm specifically taking care of the medical industry. So just mail me your specific queries. I will forward to the concerned department, and a suitable reply will be given to you. Okay, can a company have more than one ISO 13485 certificate from two different certificates? Yes, a company can have multiple ISO certification as much as the company can afford. Okay, so you can wish you have to assess your company by many certification body. Okay, so it's in self introspection. If you can go, or if you can maintain those certifications, you must go. Okay, so any specific questions, please ask. Make sure you visit the website regularly, channel regularly, encourage people to join the channel. We will be posting regulatory updates on the channel as well as. और अगर आपके कोई स्पेसिफिक कोई भी क्वेरी रहा करे, आप मुझे व्हाट्सएप ड्रॉप कर दिया करें. अगर मेरे कॉल्स आपको नहीं पिक कर पा रहे हैं या नॉट आंसर्ड है, मेरी कंपनी से भी कोई कॉल अगर आपको अनआंसर्ड है QVC से, तो आप डायरेक्टली मुझे मैसेज ड्रॉप कर दीजिए. आपकी कोई भी क्वेरीज और कंसर्न होगा, इमीडिएट इफेक्ट के साथ रिजॉल्व करा दिया जाएगा. राइट, एनी टाइप ऑफ ग्रीवेंसेस you can reach out to me. Recently we have started a grievance redressal in the industry. If you have any type of grievances, you can just drop the mail as well as in support of AIMED. And in medical device industry हमारे पास बहुत सारे plans हैं, बहुत सारे visions हैं जो हम implement करेंगे in support of the AIMED and Rajiv Nath sir. तो एंड होपफुली आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहेगा. और जो भी आपको इंडस्ट्री में कोई ऐसी भी टाइप की क्वेरीज हो, कोई भी क्लैरिफिकेशन हो, कोई भी मिसकंडक्ट हो रहा हो, जस्ट प्लीज हाईलाइट दोज इश्यूज, ताकि हम उन इश्यूज से रिलेवेंट रेगुलेशंस और फर्दर चीजों को इम्प्लीमेंट करा सकें. सर प्लीज कंडक्ट सेशन ऑन मोर स्पेसिफिकली 13485 on 149. यस, मैंने कुछ ट्रेनिंग कोर्स डेवलप किए हुए हैं इन हेल्प विद द अदर ऑडिटर्स एज वेल एज एंड इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ 13485 और 14971 के. हमारा नेक्स्ट 13485 का सेशन है, लग रहा है. माइनर नॉमिनल चार्ज है आपका 3500 पर कैंडिडेट फीस है. ऑनलाइन डिलीवर होगा, वो फरवरी के फर्स्ट वीक में है. हमारे पास कुछ ऑफलाइन कैंडिडेट भी होंगे जो होंगे, और हम उसको ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट भी करेंगे रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स को. सो आई विल एनकरेज यू टू टेक दैट कोर्सेज. Sometimes I cannot explain a lot of things in a short duration in a 1 hour webinar. So I request you, please have this webinar. And for the sake of the industry, I have requested the company to lower down the cost so everyone can afford that courses online, right? So
I would encourage or I will request you to please join that training session as well as you can reach out to me. Our team will definitely connect with you, right? Okay. Can we club multiple manufacturing sites under one Sugam portal, or do we need to have two separate Sugam login accounts? Yes, yes, under the same for the drug licensing Sugam portal CDS Co online part, you have an option to have a multiple manufacturing sites in a one, but in the medical device you have an option each time when you are going to apply for a license from a single point, from a single manufacturing site, you have to add manufacturing site. Okay, your primary address will be same, but you can take a license from the multiple sites. तो ये वाली प्रॉब्लम आपके फर्स्ट वाले इस वाले सुगम पोर्टल में रिजॉल्व हो चुकी है, और आप एक सुगम पोर्टल से जितने भी मैन्युफैक्चरिंग साइट्स अगर सेम कंपनी की है तो ओनरशिप सेम कंपनी की होनी चाहिए आपको, डिफरेंट कंपनीज के लिए नहीं है, ये सेम कंपनी है उसके मल्टीपल लोकेशंस हैं, मल्टीपल साइट्स हैं, वो सेम सुगम पोर्टल से अप्लाई कर सकती है. So many people write short form of like MEP and ETC, so it is allowed in scope. No short forms are allowed in the scope unless they are self-explanatory. Okay, so ये कोई गुड प्रैक्टिस नहीं है कि आप अपने स्कोप में शॉर्ट फॉर्म्स का यूज करें. तो आप अगर आप कोई भी शॉर्ट फॉर्म ऐसी यूज कर रहे हैं तो वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए. क्यों? देखिए, सर्टिफिकेशन बॉडी आपको अगर आप जिद करेंगे या फिर इंसिस्ट करेंगे तो वो दे देगी, बट आपको प्रॉब्लम आएगी उस चीज को हर जगह जस्टिफाई करने के लिए टेंडर अथॉरिटी में, प्रोक्योरमेंट एजेंसीज में, राइट. सो एज अ गुड प्रैक्टिस आप अपना स्कोप को स्पेसिफिक और प्रिसाइज लीजिए जो आपके बिजनेस को सेटिस्फाई करे. Okay. Now, sir, if I'm operating and manufacturing of CT scanner parts like X-ray tube detectors, but in future I'm having a plan to manufacture whole CT scanner feature, what is my scope for now? Sir, this is a specific thing, so I have to understand your whole case, but unfortunately the audit scope directly reflects your quality management system scope, so you cannot use manufacturing word in your scope, right? But there is if we can craft this scope very smartly, then we can have this scope. So you may connect with me separately. I will guide you in that case. Okay. Okay, so thank you all. Okay, one more question has, can a facility still under construction apply for ISO 13485 certification? No, you can while going for a certification, you must have a QMS in place, an effective QMS in place. Okay, it won't be a partial. Prior to conducting audit, if it is an initial few activities granted exceptions because that activities are not performed due to the regulatory clearance of the site, like sales activity, production activities and all. So these can be given a relaxation, but not a whole QMS can be given an exception. So you must an effective QMS in place prior to going for the certification. Okay, so thanks for all joining this, and I would love to join with you all, and this is very interactive session on. So in future हम आपके साथ और भी वेबिनार्स करेंगे, so make sure आप हमारे ट्रेनिंग कोर्सेज भी आइए, we will having fun, और जो भी क्वेरीज आपकी होंगी बिल्कुल सिंपल और क्रिस्प वे में एक्सप्लेन कर दी जाएंगी, राइट. Thank you all, thank you for all, and I'm just concluding this webinar. For any specific questions relevant, you can reach out to me over mail or my WhatsApp, right? Thank you all. That recording will be published on our channel. Okay, thank you.